नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल गुप्ता और मेरे साथ है गौतम रॉय। इस खास पेशकश में वी आर हियर विद ऑल द अपडेट्स फॉर यू एज फार एज दिस मैसिव ट्रेजेडी इन केरला इज कंसर्न्ड इन अ टेंपल इन it's difficult to imagine how it could take place. Over 100 people are dead already and more than 300, Rahul. Difficult to imagine why such a tragedy has taken place, especially at a place of worship and where people had just gone to pray obeisance. सही कहा गौतम आपने। रविवार की सुबह जब हम सो के उठे, एक दिल दहला देने वाली खबर ने हम सभी को दहला कर रख दिया, क्योंकि केरल के कोल्लम से जो खबर आई, वहां पर एक मंदिर में आग लगी और आग लगने के बाद धीरे धीरे जो मौत का आंकड़ा सामने आया, घबराने वाला है, भयानक है। 100 से कम 100 लोगों की मृत्यु की खबर इस वक्त आ चुकी है। 300 से ज़्यादा लोग उस आग हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस वक्त केरल के तिरुवनंतपुरम पहुंच चुके हैं और तिरुवनंतपुरम से कोल्लम के लिए वो रवाना हो चुके हैं। पूरे देश से जो राहत सामग्री एजेंसियां हैं वो अलर्ट पर हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले तिरुवनंतपुरम पहुंचे। वहां पर पहले ही प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए थे किसी भी तरह के प्रोटोकॉल का पालन ना किया जाए, ताकि प्रशासन पर किसी तरह का कोई दबाव ना पहुंचे प्रधानमंत्री के पहुंचने पर, और पूरा का पूरा प्रशासन राहत कार्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करें। और इस निर्देश के बाद पूरा की पूरी प्रशासनिक जो मशीनरी है वहां पर राहत कार्यों में इस वक्त लगी हुई है और प्रधानमंत्री खुद वहां पर पहुंचकर घटनास्थल का दौरा करेंगे। कुछ देर बाद ही कोल्लम पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। To ensure that the entire administration, all the help that is being lent, be it from the state administration or the central administration, is coordinated, and the Prime Minister likes to be hands-on as far as such operations are concerned. We've seen it in previous tragedies as well, and now in Kollum the Prime Minister is there. You can see him boarding that chopper that is taking him to Kollum from Thiruvananthapuram. These are pictures that came in just a while back. In that aircraft, the Prime Minister landed in Thiruvananthapuram. He's also taken along with him a team of specialists, of burn specialists, who are, well, desperately required, I guess, in a situation like this, where most of the injuries have taken place because of this massive fire triggered off by fireworks. And in fact, let's take you across to our special guest in our studio. We have A.K. Sharma, former Delhi Fire Chief, with us. Mr. Sharma, what do you in the first place make of this well, huge tragedy? It does seem completely disproportionate. Over 100 people dead, more than 300 injured because of fire triggered off by fireworks. First of all, let me offer my condolences, heartfelt condolences to all the people who have been affected. And as you have said, almost more than 100 people have lost their life in this accident. 300 plus have been injured and been to the hospital now, awaiting their treatment. It is a tragic loss to the nation, I would say, and an incident, a freak incident like this. To make something out of it, I would like to say it is purely a negligence. No precautions have been taken. I really do not know the things which have, when you see the picture which has gone viral and the news which we are receiving, it is evident that probably the administration itself has not given the permission for such type of display. Now, since there was no permission, I really fail to understand how and why this fireworks और द फायर डिस्प्ले। शर्मा जी, जिस वक्त आप इस पूरी स्थिति के बारे में बता रहे हैं, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हमने देखा कि फायर क्रैकर्स जो पटाखे हैं उनको भी हमने दिखाया है। कितने बड़े बड़े कंटेनर्स में पटाखों को रखा गया था और जिसकी में आग लगने की वजह से पूरा का पूरा हादसा हुआ। क्या आप समझा सकते हैं हमारे दर्शकों को कितने बड़े स्केल का ये हादसा रहा होगा कि इतनी ज़्यादा हताहतों की संख्या है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं, कम से कम 100 लोगों की मृत्यु की खबर अभी तक आ चुकी है। अभी भी कई घायल हैं जो गंभीर अवस्था में अस्पताल में हैं। कितनी बड़ी स्केल का ये भीषण हादसा रहा होगा आज सुबह 3:30 बजे जब ये आग लगने की प्रथम सूचना किसी को मिली होगी? देखिए, जो भी न्यूज़ आ रही हैं उससे ये पता लगता है ये फायरवर्क का डिस्प्ले तकरीबन 11:15, 11:30 और 12 बजे के लगभग शुरू हुआ और ये हादसा जो हुआ तकरीबन 3, 3:30 बजे के करीब हुआ। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये जो आतिशबाजी हो रही थी वो एक कंपटीशन टाइप का आतिशबाजी का माहौल था। और जब 3 घंटे किसी ने आतिशबाजी करी है, वन कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड कि व्हाट विल बी द वॉल्यूम एंड वेट ऑफ द
fireworks that has gone there. And there was still, you see, whatever has been fired, but still there were material which was available there which are yet to be fired. Yes, we can see in the that is what pictures there. exactly has caused the entire problem. We can see in the pictures there are unexploded fireworks that have been collected from the site as well. And Mr. Sharma, in terms of such arrangements and such events where fireworks displays are arranged, what are the stipulations really in terms of the safety measures that need to be put in place? Because it just seems in this particular case, apart from the amount of fireworks, there was no attention paid to any sort of safety measures. Yes, I do agree with this. Number one, the quantity was huge. Yes. And it was not probably stored in the fashion it should have been. Say for example, it has not been stored in metal containers in which they should be stored and kept safely. That is number one. Number two, it has been stored in the same premises where probably the fireworks display is taking place. Right. That is another issue which needs to be looked into. Third, the people who are firing the cracker, whether in competition they were directing it toward themselves or to one another, or probably one of the fireworks have landed during that process onto the main storage itself. Now, what was the distance of the storage and where you are firing? That has to be kept in mind. You see, we always advocate that fireworks should be, we should have a community display. Yes. Right. To prevent loss of to the exchequer, to save money, to prevent environment damage to the environment, to restrict the noise levels, so on and so forth. But in this particular case, at that point of time, the community is at safe distance wherever you are making the display. In this particular particular incident, the community itself is very close, and that is what exactly has caused the burn injuries to the people. Otherwise, people have, most of them who are injured are maybe due to stampede, but there are quite a cases where they have been injured due to the burn injuries. So, it clearly shows that they have been quite a very small distance or very near to the crackers where these were stored. Let's get a ground report. Suneet, our correspondent, is joining us from Kollam. Suneet, we're expecting Prime Minister Modi to get there very soon. He's already taken off from Thiruvananthapuram, where he landed a short while back from Delhi. But just fill us in on the latest information that is coming in as far as all those relief measures, all the treatment is concerned, and what is happening on the site. Are people still being looked for who could still be buried in that rubble there? District hospital, most of the dead bodies are kept, and the latest information that the officials are passing is that nearly 104 people have it's been confirmed that 104 people have been dead, and nearly 250 people are seriously injured. They are admitted in the various hospitals in Kollam district and into the medical college. And another thing is that the postmortem and inquest process are going on here. Nearly 31 dead bodies are already done to the postmortem, and 26 bodies have been identified. And another problem is they are facing is that most of the bodies are not able to identify because there are there is some problem with identifying the dead bodies. So the people, the police officers and medical authorities are trying for the same. And another thing, the Prime Minister Narendra Modi, he will be arriving here soon within the next 20 minutes. They have got an update that the Prime Minister is already on the way to Kollam. Yes. And a special cabinet meeting is going on here in Kollam in order to analyze the situation, the current situation. Right. Suneet, are people, the injured people, are they getting the treatment that is required? Because the arrangements that the state government and the centre has been talking about, no stone has been left unturned. The medical team has taken all the measures to provide necessary assistance to the injured people and others. And there are many things, all the AIMS and other
medical teams are already based here, and they are all helping the government authorities for the postmortem and all other kind of stuff. Right. What about information? Are people, because people must be concerned, their relatives are hospitalized. You're saying only 26 bodies have been identified so far. So there must be a lot of people there visiting hospitals trying to find out what happened to their relative who went for this huge event at that temple. Are people getting the information that they need? See, Gautam, there are nearly 25,000 people were guarded when the accident taken place there, and so it still they couldn't confirm how many people have been died. I mean, it's like how many people are infected because of this. So they are just trying in all possible ways, like they are providing toll-free numbers and special customer care numbers, and they are passing information via social media also, because to find out the people who are all missing, and the local police also trying for this. Right. And do you have any more information on Prime Minister Modi as to his program when he gets to Kollam? Because we understand that he is going to meet some of the injured, at least in one of the hospitals where they've been taken. As per the latest information, we can say that the Prime Minister will directly come to the district hospital where most of the bodies are kept, and after that he will have a meeting with the Kerala Ministry. That's the official announcement that he has got. All right, Suneet, for the moment, thanks a lot for joining us. So there you have it, the tragedy, the death tragedy that is taking place, in which the death toll has now climbed to 100-fold. That's the official figure. Of course, a lot more people still in a critical state, and it is right now, even now, a response that is required at the most massive scale that can be imagined as far as Kerala is concerned. It's an unprecedented tragedy, Rahul, over there. जी हाँ, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है वो काफ़ी भयानक है, और मौत का आंकड़ा, जो मरने वालों का आंकड़ा है, वो अब 104 पहुंच चुका है, जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया। तो किस तरह का हादसा रहा होगा उस वक्त जब वहां पर आग लगी पटाखों की वजह से, और ये आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर वहां पर हादसा रहा होगा, कितनी भयंकर वो जगह उस वक्त हो गई होगी जब वहां पर आग लगी होगी। फिलहाल इस वक्त फोकस है पूरी तरह से अस्पतालों की तरफ, जहां पर घायलों का इलाज किया जा रहा है, ताकि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके जीवन को किसी न किसी तरीके से बचाया जा सके। हमारे साथ स्टूडियो में AK शर्मा, पूर्व निदेशक दिल्ली फायर सर्विस के लगातार बने हुए हैं। शर्मा जी, जिस तरह से तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, एक मंदिर की इमारत का एक हिस्सा भी नीचे गिरा है, और वहां पर देखने में प्रथम दृष्टया ऐसे लगता है जैसे IED या TNT ब्लास्ट किसी ने किया हो, जबकि ये सिर्फ पटाखों की वजह से हुआ धमाका था या उसकी वजह से हुआ नुकसान था। तो इन तस्वीरों को देख के लगता है कि किस मैसिव स्केल के वहाँ पर जो फायर वर्क्स थे, पटाखे थे, वो स्टोर करके रखे हुए थे, जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ। ये इमारत जो का हिस्सा गिरा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो हम फायर वर्क्स की बात करते हैं, ये भी एक प्रकार के एक्सप्लोजिव ही हैं। क्या ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि इमारत को ध्वस्त कर सके? बिल्कुल। आप एक बम को देखते हैं तो वो काफ़ी, आप देखेंगे कि बम जब फटता है तो उसमें से एक प्रेशर वेव भी निकलेगी, एक लाइट एमिट भी होगी, एक हीट भी निकलेगी। तो ये जब एक बम को हम चलाते हैं, जब छोटे थे हम चलाते थे, एक धमाका भी होता है, और ऐसे ही सैकड़ों बम अगर इकट्ठे एक बारी में चल जाएं तो उसका अंजाम क्या होगा? तो इट इज़ बेसिकली ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ TNT विच वी आर टॉकिंग अबाउट। इट्स ए स्मॉल फ्रेगमेंट्स combined together, so it will have the similar effect of as if a real explosive is being fired. It will generate heat, it will generate light, it will generate pressure wave, and it will have all the characteristic of an explosive, and they are classified as one of the explosive class under the Explosive Act. So it will have a similar devastating effect as of a normal explosive substance which we are familiar with the name of TNT or others. किस तरह की इंजरीज इस तरह के हादसों में होती है? क्योंकि हमने देखा बर्न विशेषज्ञ प्रधानमंत्री जी के भी साथ गए हैं, और NDRF की जो टीम पहुंचने वाली है उसमें भी ज़्यादातर डॉक्टर्स ही शामिल हैं। किस तरह की इंजरीज ऐसे में जो शिकार होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनको होती है? देखिए, इसमें तकरीबन इन सभी एक्सप्लोजिव में मेटल पाउडर्स का इस्तेमाल होता है, और जब मेटल को पाउडर को आग लगती है वो क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंट कलर्स देने होते हैं। ओके, नाउ आप फुलझड़ी चला रहे हैं, आप रॉकेट चला रहे हैं, आप डिफरेंट तरह के कलरफुल फायरवर्क्स चला रहे हैं, तो ये जो रंग उसमें आता है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स। और जब मेटल बर्न करता है, इट गिव्स इट अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड हीट एंड लाइट। नाउ
बर्न जो फायरवर्क्स की वजह से होते हैं, आपने शायद बच्चे जब होंगे तो एक्सपीरियंस किया होगा, दे आर मच मोर डीपर एंड पेनफुल देन ए नॉर्मल बाय एनी वाटर, hot water or otherwise. So the characteristics of these burns are totally different, and that is why it's basically white heat burns. Absolutely, you said it rightly. It's a white heat, and white heat is why it is due to various powder metal available in powder forms. It will give different color and whiteness due to magnesium, presence of magnesium. All right, and the highest degree of heat as well. And you cannot see those. You eyes start blinking and you can't look at them. This is the intensity of light which is they are throwing out. So we have a huge energy released in a very small time frame, say जिस प्रकार के वहाँ पर पटाखों का इस्तेमाल किया जाना था या किया जा चुका था, जो बचे हुए थे, वो भी एक अहम कारण रहे जो इस तरह से नुकसान हुआ है। इस वक्त नीरज सिंह हमारे साथ है दिल्ली से, विजय चौक से, जो जानकारी हमें देंगे कि किस तरह से केंद्रीय एजेंसी है वो राहत कार्यों में अपना योगदान दे रही है। नीरज, क्या कुछ केंद्र की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? तमाम चाहे केंद्रीय एजेंसियां, चाहे एनडीआरएफ की बात की जाए या किसी और दूसरी एजेंसी की बात की जाए, किस किस तरह के प्रयास इस वक्त कोल्लम में किए जा रहे हैं? सबसे पहला प्रयास यही है राहुल कि जो लोग बर्न हो गए उनका जो इलाज है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके, और इसके अलावा जो दवाइयां हैं वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहें। प्रधानमंत्री खुद 15 डॉक्टरों की टीम लेकर पहुंचे हैं, जिसमें ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं वो बर्न स्पेशलिस्ट हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंच गई है। इसके अलावा 4 टीमें अलर्ट पर रखी हुई हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन टीमों को भी वहां पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं वो कोल्लम के जो 10 हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको पहुंचाया गया, और जो गंभीर रूप से ज़्यादा घायल हैं उनको जो दूसरे हॉस्पिटलों में पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पर मौजूद है। जो डॉक्टर, क्योंकि इतवार का दिन था, ज़्यादातर डॉक्टर छुट्टी पे रहते थे, सभी डॉक्टरों को बुलाया गया। यानी पूरी की पूरा जो फोकस है वो जो घायल लोग हैं, जो झुलसे लोग हैं, उनका बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके। जो दवाइयाँ हैं उनको तत्काल पहुँचाई जाए ताकि उनके इलाज में किसी तरह की शिथिलता ना बरती जाए, और इस समय हम कह सकते हैं कि जो उनका इलाज है वो काफ़ी तेज़ी के साथ राहुल चल रहा है। Apart from this, Neeraj, the focus is also getting to the bottom of how could such a massive tragedy occur at this temple gathering, and what are the efforts there, because the information is that the controller of explosives has also been sent by the Commerce Minister there. देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब ये विस्फोट हुआ था सुबह 3:30 बजे के आसपास ये विस्फोट हुआ था, और अब चूँकि 12 घंटे के आसपास पूरे जो घटनाक्रम है उसे हो चुके। तमाम जो कोशिश है वो यही की जा रही है कि जो लोग घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर और जल्द से जल्द इलाज किया जा सके। हालांकि हमारी वहाँ पर बात भी हुई है कोल्लम में, तो जो डीएम है वहाँ के, उनका कहना है कि मंदिर में विस्फोटक ले जाने की, यानी पटाखे ले जाने की इजाज़त नहीं थी, और यही कारण है कि जो 2 FIR है पुलिस ने दर्ज किया है, जिसमें 304 के तहत मामला दर्ज किया है, यानी कि जो गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज किया, और इसके अलावा हत्या का प्रयास यानी 307 और 308 के तहत मामला दर्ज किया, और इसके अलावा जो विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है उसके जो धारा 4 है उसके तहत ये मामला दर्ज किया है। अब पुलिस ने न्यायिक जांच भी इस पूरे मामले में बैठा दी गई है, न्यायिक जांच कर रही है कि आखिर कहाँ गलती हुई। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जब पटाखे चले उसके बाद कुछ पटाखे जो गोदाम है वहाँ गिर गए, और उसके बाद पूरा का पूरा जो धमाका है वो हुआ, जिसकी वजह से इतना बड़ा जो हादसा है वो सामने आया। अब चूंकि न्यायिक जांच हो रही है उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन था और किन किन जो लोग हैं उन्होंने नियम कानूनों का उल्लंघन किया। जी नीरज, प्रधानमंत्री के साथ भी डॉक्टरों की एक टीम वहां पर पहुंची, तिरुवनंतपुरम पहुंच चुकी है, और अब वो कोल्लम की तरफ रवाना है, और एनडीआरएफ की जो टीम गई है उसमें भी अधिकतर डॉक्टर्स और जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं वो ही शामिल है। क्या कोई और टीम भी स्टैंड बाय रखी गई है दिल्ली से, या कोई डॉक्टर्स की और भी टीम भेजी जा सकती है या भेजी जा रही है, जिसके बारे में अभी जानकारी राज्य सरकार को दी जा रही है या फिर आगे कार्रवाई चल रही है? देखिए, बिल्कुल 4 और एनडीआरएफ की टीम है वो अलर्ट पे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उन टीमों को भी तुरंत वहाँ पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे राज्य सरकार की बात करें और केंद्र सरकार की एजेंसियों के बीच में, वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। गृह मंत्री लगातार पूरी स्थिति को नज़र बनाए रखे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद वहाँ पर पहुँच रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद वहाँ पर डॉक्टरों की टीम को लेकर पहुँचे हैं। जो सफदरजंग और RML के जो बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनकी टीम
के साथ प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। तो कोशिश लगातार यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं घायलों को वो पहुंचाई जा सके। दवाइयों का जो स्टॉक है वो वहां पर पहुंचा दिया जा रहा है और इसके अलावा कुछ स्टॉक सुरक्षित भी रखा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस स्टॉक को भी वहाँ पर तत्काल पहुँचाया जाएगा। हेलीकॉप्टरों को भी अलर्ट पर रखा है। 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पर लगाए गए हैं। जो घायल लोग हैं उनको 10 अस्पतालों के अलावा जो दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर वहाँ पर मौजूद है और ज़रूरत पड़ेगी तो चीज़ें अलर्ट पर रखी हुई हैं और तत्काल राज्य सरकार को वो मुहैया करा दी जाएंगी। Could you elaborate on that, because this is proving to be pretty essential in saving lives, the deployment of helicopters, even naval ships, Neeraj, for medical supplies? देखिए बिल्कुल जो नेवी शिप हैं उनको भी अलर्ट पर रखने के लिए बोला गया है। इसके अलावा वायुसेना के जो चॉपर हैं वो मौजूद हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि तमाम जो सुविधाएं हैं, ज़रूरत की सुविधाएं वहाँ पहुँचाई गई हैं, लेकिन और अगर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, मेडिकल सुविधाएं हो, दवाइयों की बात हो, डॉक्टरों की टीम की बात हो, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। क्योंकि मैं पहले भी बता रहा था कि संडे के दिन है, जो तमाम जो डॉक्टर हैं वो छुट्टी पर रहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों के डॉक्टरों से भी राज्य सरकार ने गुजारिश की है कि वो भी तत्काल हॉस्पिटलों में पहुँचकर जो घायल लोग हैं उनका इलाज करें और बाकी जो सरकारी जो डॉक्टर हैं उनको भी तुरंत तत्काल अस्पतालों में बुलाया गया है। जी नीरज, आखिरी सवाल, आपने कहा कोल्लम के डीएम से आपकी बात हुई है, क्या इस बारे में उन्होंने जिक्र किया है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रशासन को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और क्या इस बारे में उन्होंने बताया जो घटना स्थल है वहाँ पर भी क्या कुछ लोग लापता है या जिनकी तलाश है, या वहाँ से पूरा का पूरा इलाका खाली करवा लिया गया है? सबसे ज़्यादा इस वक्त किस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ पर प्रशासन को? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारी डीएम से बात हुई, उनका कहना है कि करीब खत्म है, लेकिन कई सारी जो डेड बॉडी है वो अभी उनको नहीं मिल रही है। आइडेंटिफाई करना उनका ज़रूरी है। हालांकि उसके लिए जो डीएनए टेस्ट है, जो अगर पार्ट मिलते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट कराया जाएगा ताकि जो शिनाख्त है वो पूरी हो सके कि आखिर जो व्यक्ति था वो किसकी डेड बॉडी थी। मलबा हटाना अभी भी चुनौती बना हुआ है क्योंकि पूरे के पूरे इलाके में मलबा फैला हुआ है और अभी भी ये अंदेशा है कि कुछ जो डेड बॉडी हैं उस मलबे के नीचे दबी हो सकती हैं। हालांकि एनडीआरएफ और तमाम राज्य की जो टीमें हैं वो वहाँ पर लगी हुई हैं, अग्निशमन दल राज्य का, इसके अलावा जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं और आसपास के जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं जो वॉलंटरी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मलबा है उसे पूरी तरह से साफ कर लिया जाए। हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद जो स्थिति है पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। हालांकि पूरा का पूरा फोकस, अगर हम बात करें, डीएम से भी जब बात हुई उनका भी यही कहना है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो घायलों का इलाज पर है, जो लोग इसमें गंभीर रूप से कह सकते हैं जो घायल हुए हैं और जो जल गए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, ताज़ा अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए आप तक बात करते रहेंगे। तो एक एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है, खुद प्रधानमंत्री डॉक्टरों के एक दल के साथ तिरुवनंतपुरम पहुँच चुके हैं। अब से कुछ मिनट बाद वो कोल्लम पहुंचने वाले, यानी पूरी रफ्तार के साथ वहां पर अब जो घायल हैं अस्पतालों में हैं उनके इलाज के लिए पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त इस वक्त हो रहा है। केरल मंदिर हादसे को लेकर केरल की ओमान चांडी सरकार ने आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की। राज्य सरकार ने इस हादसे को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच रिपोर्ट 6 महीने में सौंपी जाएगी। केरल के मुख्यमंत्री ने मंदिर में हुए अग्निकांड में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। केरल के मुख्यमंत्री ने मंदिर में हुए अग्निकांड में मारे गए सभी लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की ये घोषणा उन्होंने की है। Now we are all concentrating to give the best available medical treatment to those who are all injured. In the latest information we got, the death row is 100%. And 383 persons are admitted in the different hospitals in Kollam and Thiruvananthapuram districts. So the postmortem is going on. Out of these 100 persons who died, out of that 60 persons are already identified. So there you have heard Oommen Chandy, the Chief Minister of Kerala, talking about the measures that have been put in place to ensure that the focus remains on saving lives of those who've been injured grievously in this tragedy. He spoke about the death toll. With the revised death toll that we have officially received so far is that 106 lives have been lost, but close to 300 people have also been injured, and the focus still remains on saving lives. And the Prime Minister has reached
Kerala. He was in Thiruvananthapuram just a short while back. He took off for Kollam along with a team of doctors, specialists, burns, injury specialists, and we have A.K. Sharma with us, former Delhi Fire Service Chief with us. Mr. Sharma, over here a big challenge would of course be saving these lives, and these burn injuries are pretty complicated. They need specialized treatment, don't they? Absolutely, yes, they do require a special treatment. You must have heard we have burn ward in all the hospitals. So that is why, because there is a great risk of infection setting in such cases, because wounds are open and you can't just cover the wounds like that. So that's why the burn wards are set up in almost all the hospital, so that we can isolate these people and they can be kept infection free. Now the problem will arise after 48 hours. 48 hours is critical for them, and that is when the infection starts setting in. Infection takes and then effect. you have to put in a lot of antibiotics into the system and then start preventing the infection and save the life. So in my view, they require special treatment, yes, number one. Number two, the figures can change dramatically after some time, after day or two. So 104 figure which we are looking at today may change, yes, but I am keeping my finger crossed, and touch wood they should not, and they get the best of the treatment. The other observation probably which I would like to say is there an excellent coordination, particularly in this accident, between the district level, be it a district level or at a state level or at a central level or at a paramilitary forces. और शर्मा जी, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त कोल्लम एक बार सीधा ले चलते हैं अपने दर्शकों को, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर आपसे कुछ देर में शायद वहां पर पहुंचने वाला है। सीधी तस्वीरें हम आपको कोल्लम से दिखाएंगे। तिरुवनंतपुरम प्रधानमंत्री अब से करीब आधे घंटे पहले पहुंचे थे और प्रधानमंत्री के साथ बर्न्स चिकित्सकों का एक खास दल भी गया हुआ है। इस दल में 15 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप कोल्लम से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। शर्मा जी, जिस तरह से आप इंजरी के बारे में बात कर रहे थे, अब जो ये दल पहुंचा है 15 डॉक्टरों का, जो खासकर जो इस तरह की इंजरीज होती हैं उसके विशेषज्ञ हैं, तो ये दल काफी मदद कर सकता है वहां पर। I believe they've been drawn in from burns wards in Safdarjung Hospital as well as Ram Manohar Lohia Hospital in Delhi. Yes, I think they will be an asset there, because most of the people have been told that they have burn injuries, and if immediate reliefs are provided, we can start their management as early as possible. The result will be so good at a later stage. So we can stop the infection setting in, and now if they get the right treatment, and the result, as I said, could be in our favor. Yes. हाँ, इस त्वरित कार्रवाई के बारे में भी दर्शकों को बताना यहाँ पर काफ़ी लाजमी है। जिस तरह से सुबह 3 बजे ये हादसे की खबर आई, उसके बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम दिशा निर्देश दिए गए। सुधाकर दास इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं कोल्लम से। सुधाकर, हम देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है कोल्लम में, और उसके बाद प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है, कहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री को जाना है, और उनके साथ जो टीम आई है क्या वो भी हेलीकॉप्टर में साथ है या उनको किसी और तरीके से अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री कोल्लम पहुंच गए हैं राहुल। कोल्लम में प्रधानमंत्री यहाँ से अस्पताल जाएंगे, दौरा करेंगे, और हमने देखा राहुल सवेरे से जिस तरह से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में खबर मिली और जिस सक्रियता से उन्होंने तो जो तमाम संसाधन यहाँ पहुँचाए हैं राज्य में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, NDRF हो, तमाम जो डॉक्टरों की मदद, वो खुद अपने साथ जो एम्स सफदरजंग RML अस्पताल से जो डॉक्टर्स की टीम लेकर आए हैं, और जिस तरह की भी मदद हो सकती थी वो तमाम मदद उन्होंने पहुंचाई है। और अब वो खुद कोल्लम पहुंचे हैं और यहाँ राज्य के मुख्यमंत्री ओमेन चांडी आए हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए, और संभवतः यहाँ से प्रधानमंत्री अस्पताल का भी दौरा करेंगे और राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ उनको अगर मदद की जरूरत है तो वो मदद मुहैया कराई जा सके। तो वो तमाम मदद जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री सवेरे से लगे हुए हैं, वो मदद आगे भी किस तरह से दी जा सकती है, खासतौर पर क्योंकि ट्रेजेडी के वक्त में
जो तुरंत जो मदद है उसकी काफी आवश्यकता होती है, खासतौर पे जो घायलों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले उस पर बहुत ज्यादा जोर है प्रधानमंत्री का। और उसी मकसद से जिस तरह से उन्होंने खुद मोबिलाइज किया तमाम केंद्रीय संसाधनों को और राज्य सरकार के साथ कैसे मिलकर इस आपदा की घड़ी में जो जिन लोगों की भी क्षति हुई है, जिन लोगों को नुकसान पहुंचा, जो घायल हुए हैं, उनको और कैसी मदद दी जाए उस बारे में वो जायजा ले रहे हैं। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं केरल के मुख्यमंत्री उमेन चांडी और राज्य के मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों से, और पूरी स्थिति की जानकारी अभी उस वक्त वो ले रहे हैं। राहुल जी, right. It just shows, it seems, Sudhakar, that the entire administration has been on its toes, and the entire Kerala cabinet had also held a meeting a short while back in the Kollam guest house, and then though Prime Minister Modi had said that no formalities, no protocol needs to be maintained, but it just shows that the level of coordination, it seems, is very high between the centre and state to deal with this tragedy. जी बिल्कुल गौतम, सवेरे से हमने देखा जिस समय मीडिया भी उतना सक्रिय नहीं हुआ था, हमें ये जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त से सक्रिय हैं। लगातार वो खुद ही तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, चाहे उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक बुलाकर तमाम स्थिति का जायजा और किस तरह से संसाधन एयरफोर्स, NDRF, नेवी की तमाम संसाधन जो है मुहैया कराने की बात की हो, या कोई और मदद, या फिर डॉक्टर्स की जो टीम उनके साथ आई है, एम्स के डायरेक्टर MC मिश्रा खुद आए हैं, उसके अलावा तमाम जो बर्न स्पेशलिस्ट हैं वो तमाम बर्न स्पेशलिस्ट यहाँ आए हैं। और इस वक्त कोलम हेलीपैड के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल जा रहे हैं घायलों का जायजा लेने के लिए, और क्या कुछ और भी करने की जरूरत है तो वो सब कुछ किए जाएंगे। गौतम जी सुधाकर, इस वक्त हम अस्पताल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री को अब से कुछ देर बाद शायद पहुंचना है, लेकिन जिस एयरक्राफ्ट में आप आए हैं प्रधानमंत्री के साथ, उसी एयरक्राफ्ट में विशेषज्ञों का दल भी पहुंचा है तिरुवनंतपुरम और अब कोल्लम। ऐसे में जनरली हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं पर यात्रा में जाते हैं तो हवाई जहाज़ में पत्रकार होते हैं या स्टाफ होता है, ऐसे में ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है कि डॉक्टरों की एक टीम को लेकर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं केरल। और क्या क्या आपने साजो सामान देखा है जो इस एयरक्राफ्ट में केरल पहुंचा है? जी बिल्कुल, सिर्फ प्रधानमंत्री के जहाज में नहीं राहुल, प्रधानमंत्री के जहाज के अलावा और भी एयरफोर्स के विमान इस काम में लगाए गए हैं, और भी डॉक्टर्स जिसमें आ सकते थे। और हमने खुद देखा प्रधानमंत्री के जो का शेष विमान है उसमें एक एक सीट पे जहां भी डॉक्टर्स या मेडिकल असिस्टेंट बिठाए जा सकते थे उनको बिठाया गया, उनके साजो सामान को रखा गया, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और तमाम तरह के जो प्रोटोकॉल, चाहे दिल्ली में हो या त्रिवेंद्रम में हो या कोल्लम में हो, प्रधानमंत्री की तरफ से सीधे निर्देश ये दिए गए थे कि प्रोटोकॉल में फंसने की जरूरत नहीं है। जरूरत अभी इस वक्त जो तमाम लोग घायल हैं उनके घायलों को, उनके परिवारजनों को मदद पहुंचाने की जरूरत है, और उस मदद के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। और जिस तरह का मोबिलाइजेशन प्रधानमंत्री की सक्रियता की वजह से हुआ अब हम देख पा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आज जब पूरी स्थिति का जब जायजा लेंगे, मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी करेंगे संभवतः अस्पताल के दौरे के बाद, तो उसके बाद और भी अगर कोई राज्य को मदद की जरूरत होगी तो निश्चित तौर पे वो केंद्र की तरफ से दी जाए, ये संभावना भी अब लगा सकते हैं। Right, just stay on the line with us, Sudhakar. We're also joined by Suneet, our correspondent there in Kollam, who's been tracking all the developments right from the start. Suneet, I believe you're at the hospital where the Prime Minister is scheduled to visit very soon. Could you just tell us about what sort of arrangements are in place? How many injured are there at this hospital? And is everything in place to take care of them? उसने अभी आपकी कॉल को होल्ड पर। We don't seem to have established that contact with Suneet as yet. Sudhakar, if I could come to you again, you were mentioning that apart from that medical team, a lot of other efforts have been made even to get medical supplies. The Navy has put its resources to use over there, and to ferry people who've been injured grievously. We've got news of at least 8 helicopters being pressed into service by the Air Force and the Navy. Sudhakar, we'll try and get in touch with you again. I believe Suneet is back on the line with us. Suneet, what can you tell us about the latest
a situation where the Prime Minister is set to visit, by showing live pictures of the hospital there in Kollam. सीधी तस्वीरें हम इस वक्त कोलम के अस्पताल से दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। हालांकि तमाम प्रोटोकॉल है उसको प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उसका ध्यान ना रखा जाए और प्रशासन का पूरा ध्यान जो बीमार है, जो घायल हैं, उनको बचाने पर ही लगे। AK शर्मा इस वक्त हमारे साथ है स्टूडियो में, पूर्व निदेशक दिल्ली फायर सर्विस के। शर्मा जी, अब राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं और 6 महीने में उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है, लेकिन अगर इस हादसे के बारे में बात की जाए, जिस तरह से बताया गया कि कोई परमिशन नहीं थी, क्या कोई मशीनरी होती है जो, क्योंकि ये जो आयोजन था ऐसा नहीं था कि नया आयोजन था या पहली बार हो रहा था, इस तरह के आयोजन वहाँ पर पहले भी कई बार हो चुके हैं और इस तरह की भीड़ पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। ना सिर्फ इतना बल्कि इस तरह की आतिशबाजी भी पहले भी कई बार हो चुकी है। तो हादसे को निमंत्रण तो पिछले कई सालों से लगातार दिया जा रहा था। केरला में अलग अलग मुख्तलिफ जगहों पर भी पहले, उसके बावजूद ये हुआ है। तो ऐसे में क्या कोई मशीनरी कोई एक्टिव नहीं थी? कहाँ का फेलियर ये सामने आया? देखिए, जहाँ जो हम पिक्चर्स देखते हैं, जो न्यूज़ आ रही हैं, सबसे पहली बात तो है कि ऐसा कहा गया कि परमिशन नहीं दी गई। परमिशन फायरवर्क्स डिस्प्ले के लिए लाजमी है, स्टोरेज के लिए लाजमी है। अगर वो नहीं दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन ने, ओके, इसका डिस्प्ले नहीं होना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद भी डिस्प्ले हुआ, इसका मतलब रूल को वायलेट किया गया। नाउ जब हमने रूल को वायलेट कर दिया तो हम सिर्फ यही कह के कि रूल वायलेट हो गया चुप नहीं रह सकते। जब रूल वायलेट हो रहा था तब भी तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का अमला था। 4 घंटे तक रूल वायलेट होता रहा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड रात को पटाखे नहीं बजेंगे। ओके, वी हैव वायलेटेड दैट आल्सो। एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिसने वहाँ परमिशन नहीं दी, सो कॉल्ड, या परमिशन दी, वो भी अमला वहाँ पे मौजूद था, SDM मौजूद थे, पुलिस फोर्स वहाँ पे पूरा मौजूद था। Why they remain a spectator only? Why they have not taken a proactive action? Why they have not stopped that display or the competition which was going on? Well, that is a very important question that will be raised. For the moment, let's try and get in touch with Suneet again, our correspondent in Kollam, who's there at the hospital where the Prime Minister is scheduled to reach any moment now. Suneet, what can you tell us about the arrangements there, and especially the number of patients that are there because of this tragedy, and are all arrangements in place really to take care of these people? So almost all the arrangements have been taken by the health department and various other departments out here, and the postmortem process is going on here, and also the inquest process also. And as of now, we have got information that nearly 104 people have been dead, and 250 people are seriously injured. Right now, I'm standing in front of Kollam District Hospital, where around 35 seriously injured people are out here, and the Prime Minister will be coming here in a minute, and he will be visiting the injured people, and also he is planning to meet a few of their relatives, and that's the latest update that we could see now. Has sufficient infrastructure now been put in place at this hospital? Because burns victims, and most of these people who are there at the hospital are burns victims. They need a specific kind of isolation. They need to be taking a special care of as far as their injuries are concerned. Yes, exactly. They, for them, for those who need special care, I mean special treatment, they are moved to the nearby medical college, which is Trivandrum. Okay, most of the seriously injured people are already moved to Trivandrum Medical College, and where they are getting enough treatment. And also the Prime Minister is there is a team from AIMS also will be coming here, and they will take care of the things. And apart from this, what else is the Prime Minister likely to learn once he visits this hospital? So we have got the information like he will be coming here by 3:30, and he's just planning to meet few of the relatives of those people who are seriously injured, and they'll be visiting them, and thereafter he has got another program also that he will be held a meeting with the state cabinet ministers. All right, we believe that the Prime Minister is about to reach this venue. We can see some movement there as far as the security personnel are concerned as well. Suneet,
what more can you tell us about, well, basically all the other hospitals where right now these burns injury patients have been taken to? You were saying that they've been moved to the medical college, those who need critical care, and there are a lot of patients who've also been moved out of Kollam. No. It's confirmed that there are only people from the particular area where the accident has been taking place. That's the recent updation that we have got. There is no any people from outside Kollam district. Okay, and we are getting these pictures live from the district hospital in Kollam, where the Prime Minister is set to arrive. I can see movement there. The Prime Minister seems to have arrived. He will be alighting very soon from the vehicle, and apart from meeting those who've been injured in this tragedy, the Prime Minister is set to also meet relatives, next of kin of those who've died, because a lot of those who have passed away in this tragedy, their bodies have also been kept at this hospital for the purpose of identification. Postmortems are being conducted. You can see Rajiv Pratap Rudy there, Union Minister, in those pictures, along with the Health Minister JP Nadda. So these Health Minister JP Nadda had already arrived prior to the Prime Minister's arrival in Kollam to coordinate all the operations as far as the taking care part of the injured is concerned, and the entire really mission to save lives. Although 100 people have died in this tragedy, a lot has been done to ensure that those who are injured are taken care of in a fairly high quality manner. Over 300 people injured, that's what the reports that we have got, and we're just waiting right now for the Prime Minister to alight from his vehicle and head inside to meet those who've been injured in this tragedy, and also their relatives, also those who lost their lives. यहाँ जो गंभीर रूप से घायल हैं वो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम भेज दिए गए हैं। जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ देर पहले बताया था कि राज्य सरकार की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर की सेवाएं की गुजारिश की गई थी, जिसको तुरंत माना गया, और 2 हेलीकॉप्टर की सेवाओं के जरिए जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई गंभीर रूप से घायलों को यहाँ से 60 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर के जरिए दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर इस तरह की इंजरी से निपटने के लिए बेहतर इंतज़ाम मौजूद हैं। तो इस वक्त पूरे प्रशासन का फोकस है जो इंजर्ड है, जो घायल है, जो बर्न इंजरी के शिकार हैं, उनकी जान को बचाया जाए, जिससे मरने वालों का आंकड़ा जो पहले से ही 100 को पार कर चुका है उसको सीमित रखा जाए। इस त्रासदी के वक्त ना सिर्फ राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बल्कि तमाम केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की एजेंसियां इस वक्त एक साथ मिलकर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, और राज्य सरकार की तरफ से अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। FIR दर्ज की गई है और एक न्यायिक जांच दल के बारे में भी घोषणा की गई है, जो 6 महीने में इसके बारे में अपनी रिपोर्ट देगा। ये कोल्लम जनरल हॉस्पिटल के तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा और राजीव प्रताप रूडी पहले से ही यहां पर मौजूद हैं, और ख़ुद प्रधानमंत्री अब यहां पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, जहां पर ज़्यादातर घायल हैं जो एडमिट हैं, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको तिरुवनंतपुरम और दूसरे अस्पतालों में भेज दिया गया है। जी, और जो ताज़ा जानकारी इस वक्त हमारे पास आई है, प्रधानमंत्री कोल्लम जनरल हॉस्पिटल पर आने से पहले घटनास्थल, जो मंदिर है जहां पर ये आज सुबह ये हादसा हुआ, घटनास्थल पर जाएंगे और वहां के लिए वो रवाना हो चुके हैं, और वहां पर घटनास्थल पर जाकर वो स्थिति का जायज़ा लेंगे कि ये दरअसल पूरा हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, और अब वहां पर क्या स्थिति है, किस तरह से राहत और बचाव कार्य वहां पर अंजाम दिए जा रहे हैं। So that's the clear information that we're getting. We are showing you pictures of the district hospital in Kollam. The Prime Minister will be coming here in a short while. Right now he's headed to the spot, the Puthingal temple. That's where this massive tragedy has taken place because of a fireworks display that went completely wrong. And the Prime Minister, it seems, wants to get hands-on information and assessment of how could this well, massive tragedy on such unprecedented scale because of fireworks could take place at the spot, an event for which no permission had been granted by the district administration, and yet it took place. A lot of fireworks had been stocked in that
area, because the fireworks started around midnight and were taking place even at 3:30 when that incident took place. यह सीधी तस्वीरें हम आपको कोल्लम से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, जहां पर जिस मंदिर में ये भीषण आग लगी आज सुबह और जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा, करीब जो ताज़ा आंकड़ा हमारे पास है, 106 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से आपको केरल ले चलेंगे और ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाएंगे, ताज़ा अपडेट आपको देंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाइए। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। श्रीमान श्रीमती ने किया अपना घर बुक, मनाई खुशियाँ, बांटी मिठाइयाँ, दिन महीने हुए, महीने बने साल, पर कंस्ट्रक्शन ना आगे बढ़ा। जैसे जैसे पोजीशन आगे बढ़ता गया, दिल उतनी ही तेजी से धड़कता गया। बिल्डर से की बात तो जवाब वही गोलमाल, पर श्रीमान श्रीमती ने हार ना मानी, रास्ता ढूंढा, पहुँचे कंज्यूमर कोर्ट। न्याय तो मिला, हर जाना भी मिला और बिल्डर को करारा सबक मिला। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं एसोचैम द्वारा जनहित में जारी। अब तो अपने गांव में संपर्क सड़क के किनारे वृक्षारोपण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हाँ, मगर देखो, सड़क के दोनों तरफ छायादार पेड़ होने से हरियाली बढ़ती है, साथ ही सड़क के किनारों पर टूट फूट भी नहीं होती। पेड़ की जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ जो लेती हैं। सड़क किनारे पेड़ों से किनारों पर मजबूती है, हरियाली संग लाई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। Welcome back. We are getting you this special coverage of this tragedy that is taking place in Kollam at a temple where a fireworks which had no authorization, no permission, a fireworks display took place, because of which over 100 people have died. Prime Minister Modi has reached Kollam. He is at the moment on his way or at that site where this tragedy took place. We have former Delhi Fire Chief A.K. Sharma with us. Mr. Sharma, clearly the Prime Minister needs to understand, he feels the need to understand, how could such a huge tragedy unfold in a simple fireworks display, over 100 people dead? Yes, he need to understand, and he need to understand from the he must be eager to listen from the horse's mouth, let me put it this way. And as we have seen the issues which have raised, he want to know about that, and that is why he is so eager, and that is why he has cut on all protocols, and he has intervened in this particular incident directly. The instructions have gone loud and clear to him that he want to provide the relief, and I said it has been excellent coordination between all agencies, be it NDRF, be it Air Force, be it a naval, be it a local administration, be it a center or state. So many ministers are there which are coordinating the various actions, so that a relief can be now provided to people who have suffered, and as many lives as possible can be salvaged or saved. That is what is the priority right now, and to do that, probably yes, we need to understand what went wrong, how it went wrong, and what we can do best right now under the situation or the limited options which are available to them. जिस तरह से शुरुआती जो बातें सामने आई हैं, प्रशासन की लापरवाही का मामला तो सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्योंकि पूरा प्रशासन व अमला वहाँ पर सक्रिय हो चुका है, खुद प्रधानमंत्री मौजूद हैं, पोस्टमार्टम किया जाएगा, क्या असली वजह रही कि जिसकी वजह से हादसा हुआ, इसको तलाशे जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जब इतना भयंकर हादसा हुआ है कि एक इमारत का एक हिस्सा तक गिर गया है, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं। अब उस स्थल पर क्या कुछ पता चल सकता है जिसके बारे में ये जानकारी हासिल की जा सके कि लापरवाही के अलावा कौन सी दूसरी वजह थी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? Yes, the event can be reconstructed. There are people who are the eyewitnesses. There are records which are available. How much material has come in, the state of construction in which, or the storage condition which were there, the impact of the explosion which has taken place, that can be reconstructed. The damages, the type of damage, the deepness of the damages, the type of the pattern of flames, the pattern of the soot
soot or the fire or the radiation heat which it has melted up to what extent, one can always find out what were the temperature, what were the pressure which were generated by just reconstructing the events. And it is what is all about said in the forensic sciences. Forensic science is all about all this, to reconstruct the event and to arrive at what really happened at that point of time scientifically, and arrive at a conclusion that yes, this is what has happened during that process. And understanding, getting to the bottom of this, can it also help in terms of say treating those people who've been injured in this tragedy? Because apart from the burns, it seems that people could have also received other trauma injuries because of debris. Yes, that can, but you see, treatment, as far as treatment is concerned, it is a treatment which doctor will see what they are suffering from and treat it. But what we were talking earlier was the investigation part of it, how to reconstruct those events, and that will definitely take time. As it has been said, the investigation has been given 6 months time or so. So that will, reconstruction of events and corroborating it with eyewitnesses will definitely take time. But that may not have any repercussion or immediate impact on the treatment which right now is being required by those people who are injured. So doctor will see what symptoms are there, what signs are there, what damages is there to the body, and they will treat them accordingly. And that is required immediately. That cannot wait for the investigations. Yes. और शायद इस बात का भी पता लगाया जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि मंदिरों जैसी जगह में जहाँ पर जगहें काफ़ी छोटी होती हैं और लोगों की संख्या हज़ारों में होती है, तो वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतज़ाम है उसको पूरी तरह से ताक पर रख दिया जाता है। ये भी पता लगाया जाएगा, जब इतनी मैसिव आतिशबाजी का इंतज़ाम किया गया था तो कितनी दूरी आम लोगों और आतिशबाजी के बीच में रखी गई थी, और किस तरह से रूल्स और रेगुलेशन, जो आम नियम कानून है, उसको भी क्या आतिशबाजी के साथ हवा में उड़ा दिया गया या किस तरह से उसको दरकिनार इग्नोर किया गया। तो इन सब चीज़ों का भी पता चलेगा और आगे उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में इन सब चीज़ों से ज़रूर अब की बार सीख ली जाएगी। देखिए, कोई भी इंसिडेंट होता है इस तरह का जिसमें लोगों की जान जाती है, इंजर्ड होते हैं, अगर उस इंसिडेंट से हम नहीं सीखेंगे तो ये होते रहेंगे और हम हमेशा यही करते रहेंगे कि रिलीफ प्रोवाइड कर दीजिए, रिलीफ प्रोवाइड कर दीजिए। दिस विल गो ऑन हैपनिंग unless we learn from the mistake and take precautions so as not to allow that incident, such type of incident happen at least. I think that is what is needed to learn from these incident or accidents, and this can be done only by having a proper investigation, a true investigation, and see what went wrong and to set that wrong right, and take lessons from the other events which are likely to happen in future. I think that is what best we can do right now. It's a practice, it seems, in Kerala and several religious events, not just in temples, even in churches. We've seen incidents that have gone out of hand in the past. Do you think that once a deep and in-depth look is taken at this particular incident, there will be there is scope for bringing in measures that will limit the exercise of such events, or at least prevent them? Oh yes, definitely there is always a scope for improvement in anything. Every incident teaches you a different aspect of the situation, and there is always a scope one can always improve upon. But in this particular incident, it appears so that the basic laws were not even followed. So if we haven't planned anything in this, we haven't taken any permission, we haven't planned the evacuation, we have not had any say incident plan or a disaster plan, we have not worked out probably where those people will be evacuated. All those things have not been done in this particular incident. And why we have not done? Probably because it has been happening over a period of time. Such type of event were happening over a period of time in the past, and nothing has happened, and that probably has made them much more careless that nothing has happened over a period of time. But then it has happened, and we should learn from it. शर्मा जी, आप दिल्ली फायर सर्विस में रहे हैं और दिल्ली में भी हमने आग लगने की कई घटनाओं को देखा है। वहाँ पर ये जो आज हादसा हुआ, ये काफ़ी बड़े पैमाने का, इसमें कोई दो राय नहीं है। अस्पतालों के सामने आपके नज़रिए से इस वक्त क्या चुनौती होगी, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में गंभीर रूप से घायल या कम गंभीर रूप से घायल लोग आते हैं,
तो अस्पताल के सामने एक तो स्टाफ की चुनौती हो सकती है, दवाइयों की चुनौती हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में चाहे कितना भी बड़ा हो वो छोटा नज़र आने लगता है। तो अस्पतालों के सामने इस वक्त क्या चुनौती होगी? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे नर्सें वहाँ पे चाहिए होंगी, पैरामेडिक स्टाफ चाहिए होगा, डॉक्टर चाहिए होंगे, दवाइयाँ चाहिए होंगी। हमारे जो हॉस्पिटल हैं, दे आर ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। दिस इज़ एन एक्स्ट्रा रश विच हैज़ कम इन। वी हैव टू कॉल इन ऑफ ड्यूटी पीपल, वी हैव टू हैव ए सेट measures or counter measures for such incident and accidents which happen like this. Suddenly आपको एक particular तरह की antibiotic चाहिए होगी which is required probably due to for one injury. Quantity will be another problem. Purchasing will be another problem. Getting supplies will be another issue. So these are all logistic problem will always will also come in. Then you have to look for उनके जो relative हैं वो भी वहाँ पे इकट्ठे होंगे। कोई relative नहीं है वो वहाँ पर information अपने जो सफ़र कर रहे हैं उनको लेने के लिए तैयार बैठे होंगे, उनके पास कोई information नहीं जा रहे हैं, they will feel agitated. So you have a set of a lot of law and order problem probably. And is there an SOP for this as far as you've been Delhi Fire Chief, so there's an SOP for this in Delhi? Yes, we do have SOP as far as fire department is concerned, how to react and how to respond to an accident, an incident, how to manage that accident, how to provide relief. Yes, and we understand that there is a SOP for all other department, inline department which are supported departments, say like for and police. You expect that such an SOP would be in place in Kollam as well, to prevent such a tragedy from taking place if such an event is being organized, and B, if such a tragedy still takes place despite all the arrangements, what should be the SOPs in place in Kollam, which is a coastal district in Kerala? I do expect, yes, these SOPs should be there in place, because disaster management is now a national, there is no importance given to a national disaster management and the instructions are right loud and clear from Delhi. And India itself. is a country which is regarded as a country which has certain expertise in this now. Absolutely right, and this has to be followed irrespective. District authorities has been given certain powers. They have been told to manage their district with respect to disasters, look into the hazard, what hazards are there, take preventive measures, provide for and make provisions for relief and rehabilitations, do mock drills, conduct awareness programs. So all these things have been set in right at the subdivision level of a district, right up to the state level, and then to the central level. Okay. Institutions have been created, capacity building is being done, and it's an ongoing process. Of course, I'm sure it must be there in the place where the incident has taken place in Kollam as well. जी, दिशा निर्देश तो मौजूद है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि इन दिशा निर्देशों का किस हद तक और कितना पालन किया जाता है, कि अगर दिशा निर्देशों का सही वक्त पर सही तरीके से पालन हो। A complete mockery has been made of all these SOPs if they were followed. जी हाँ, अगर सही वक्त पर सही दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12मासी पक्की संपर्क सड़क नहीं थी तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गई, दूरियां भी मिट गई, तरक्की से जुड़ी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें, जहाँ सोच। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम केरल के कोल्लम में जो आज सुबह मंदिर हादसा हुआ है उसके बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ चूक रह गई और अब क्या चुनौती है और इस वक्त ताज़ा तस्वीर क्या है, उसके बारे में भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी हैं और अपनी अपनी तरह से मदद कर रही हैं। नीरज सिंह ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है दिल्ली से। नीरज, और क्या कुछ इस वक्त आपके पास जानकारी है? NDRF के बारे में आपने अब से कुछ देर पहले बताया था, और कौन कौन सी एजेंसियां सक्रिय हैं और किस तरह से कोल्लम में सहायता पहुंचाई जा रही है?
देखिए राहुल, मैं बता दूं कि 6 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, जिसमें MI-17 हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। इन दोनों हेलीकॉप्टरों की खासियत यह है कि MI-17 में जहां अधिक से अधिक जो घायल लोग हैं, जो जले लोग हैं, उनको ले जाया जा सकता है। करीब 15 के आसपास जो लोग हैं उनको हेलीकॉप्टर में शिफ्ट करके हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है वो किसी भी कह सकते हैं समय, यानी चाहे रात हो, दिन हो या कम रोशनी हो, उसमें भी उसको ऑपरेट किया जा सकता है। तो यानी तमाम जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर मुहैया करा दी गई हैं। इसके अलावा कोल्लम की अगर हम बात करें, तट पर 3 जो जहाज़ हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर हैं। इसके अलावा तमाम जो उपकरण हैं वो मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके अलावा कोच्चि का जो हॉस्पिटल है, कमांड नौसेना का कमांड अस्पताल है, वहाँ के डॉक्टरों को अलर्ट पर रख लिया गया। उन सभी डॉक्टरों को बुला लिया गया। अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। तो तमाम एजेंसियों की अगर हम बात करें, चाहे केंद्र सरकार की एजेंसियों की बात करें या राज्य सरकार की तमाम जो एजेंसियाँ हैं जो लगी हुई हैं इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में, उनकी पूरी कोशिश यही है कि जो लोग घायल हैं उनका जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके, क्योंकि 300 से ज़्यादा संख्या में जो घायल हैं वो विभिन्न अस्पतालों में हैं और उनमें कई घायल ऐसे हैं जिनकी जो हालत है वो काफ़ी गंभीर है। तो डॉक्टरों की टीम को भी उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो ज़्यादा घायल हैं उनके लिए, उनकी देखभाल के लिए अलग तरह के जो कमरे हैं, अलग तरह के कक्ष हैं। जो कम जो जले लोग हैं उनके लिए जो दूसरे डॉक्टर और उनको कई सारे जो मरीज हैं उनके साथ रखकर इलाज किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द और बेहतर इलाज उनका किया जा सके। Right, Dheerajan, how has it been ensured that the best possible coordination is there as far as deployment of these resources are concerned? You mentioned these helicopters, you mentioned other aircraft that have been put into service, and of course these medical teams and even equipment and medicines have been moved in using naval ships. देखिए बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था कि 3 जो जहाज़ हैं जो कोल्लम के जो तट पर खड़े हैं, वहाँ पर तमाम ज़रूरत की चीज़ें, दवाइयाँ वहाँ मौजूद हैं। वहाँ से जो दवाइयाँ हैं वो पहुँचाई जा रही हैं हॉस्पिटलों को। इसके अलावा डॉक्टरों को भी वहाँ पर अलर्ट रखने के लिए बोला गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर भी जो पेशेंट हैं उनको लाया जा सकता है। इसके अलावा तमाम जो दवाइयाँ हैं वो दिल्ली से भेजी जा रही हैं और अगर दवाइयों की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उन दवाइयों को भी तत्काल पहुँचा दिया जाएगा। जैसे NDRF की जो 4 टीमें हैं वो चेन्नई में अलर्ट पे हैं और जहाँ डॉक्टर भी मौजूद हैं और दवाइयाँ भी मौजूद हैं। तो जैसे ही ज़रूरत होगी उसी के अनुसार जो काम है, जो दवाइयाँ हैं वो तुरंत वारदात वाली जगह पर पहुँचाई जाएंगी। जो घायल लोग हैं उनका जो इलाज चल रहा है वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी। और जितनी भी केंद्र सरकार की एजेंसियाँ, राज्य सरकार की एजेंसियाँ इसके में आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो भी लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनका जल्द से जल्द और बेहतर इलाज किया जाएगा, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जो लोग हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। जी नीरज, अंतिम सवाल, इस वक्त क्या सूचना मिल पा रही है हादसे के बारे में, क्योंकि जो मरने वालों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 100 के पार पहुंच चुका है, 106 पहुंच चुका है, 300 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोगों की हालत गंभीर है, क्योंकि ये जो आग लगने की वजह से जो इंजरीज होती हैं, तमाम विशेषज्ञ कहते हैं कि ये काफ़ी खतरनाक, काफ़ी फेटल साबित हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास क्या आधिकारिक सूचना अभी तक मिल पाई है? क्या ताज़ा तस्वीर, ताज़े आंकड़ों के हिसाब से क्या ताज़ा तस्वीर सामने है? देखिए राहुल, जहाँ तक जो हादसे का प्रश्न है और जो कैजुअलिटी है वो निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो अभी भी घायल हैं और उन घायलों में कई की स्थिति ऐसी है जो काफ़ी गंभीर बनी हुई है और जो कह सकते हैं कि बहुत 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो जल गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिसमें 60 से 70% के आसपास जो लोग हैं उनकी जो बॉडी है वो बंद हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर घायलों का आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन जो लोग अभी भी मौजूद हैं अस्पतालों में जिनका इलाज किया जा रहा है, हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है। केवल इतना बताया जा रहा है कि जो मरने वालों की जो संख्या है वो 106-107 के आसपास हो गई है। जो लोग हैं जो आइडेंटिफाई कर लिए गए, हालांकि अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो आइडेंटिफाई नहीं किए, जो मलबे और उसके आसपास जो लोग हैं वो जो धमाका हुआ था उसमें उनकी कैजुअलिटी हुई थी, तो कुछ संख्या उनकी भी हो सकती है। और इसके अलावा जो घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है उसमें जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। तो यानी पूरा फोकस अब यही किया जा रहा है कि जो लोग बचे हैं उनको बेहतर से बेहतर इलाज उनका किया जाए, ताकि जो कह सकते हैं जो जान की जो हानि है वो अब ज़्यादा ना होने पाए। जी Neeraj, thank you Neeraj for joining us for the moment. So there you have the best effort that has been made here is of course getting those team of doctors from wherever required, be it from Delhi, from other places, from even the Navy as well as the NDRF. They are being put to work now to ensure that we don't lose more lives, although a lot of people are still in a fairly serious condition. जी हाँ, तस्वीर इस वक्त जो सामने आ रही है, बार बार जो तस्वीरें, ताज़ा तस्वीर सामने आ रही है वो बता रही हैं कि हादसा
कितना भयानक था और हादसा भयानक ही रहा। इसी वजह से 106 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 300 से ज़्यादा लोग घायल हैं। आतिशबाजी की वजह से ये हादसा हुआ है। अब ये सहसा यकीन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आतिशबाजी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो सकता है, ये अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। ए के शर्मा जी इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ लगातार मौजूद है। शर्मा जी, जिस तरह से रिपोर्ट्स अभी ताज़ा सामने आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती है, हालांकि कंफर्म है या नहीं है इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मंदिर के जिस हिस्से में सबसे ज़्यादा आग लगी वहाँ पर कुछ पेंट के कंटेनर भी रखे हुए थे। क्या पेंट में ऐसा कोई केमिकल होता है जिसकी वजह से धमाके की तीव्रता बढ़ जाती है? क्या एक ये वजह हो सकती है कि धमाका इतना तीव्र हुआ कि इमारत का एक हिस्सा तक धराशायी हुआ? देखिए, पेंट का जो बेस है वो रेजिन्स है बेसिकली और फ्लेमेबल मटेरियल है और उसमें पिगमेंट्स डाल दिया जाता है। दिस इज व्हाट बेसिक डेफिनेशन ऑफ पेंट इज एंड दीज आर फ्लेमेबल मटेरियल्स। सो अगर किसी भी वजह से पेंट के आसपास आग लग जाए तो इट विल ऑलवेज ऐड टू द इंटेंसिटी ऑफ द फ्लेम। So we have a added fuel apart from the आतिशबाजी और the fireworks which we are talking about। अगर पेंट तक आग पहुंची है तो, और नॉर्मली ऐसे अगर हम मंदिर को देखें या किसी भी चीज़ को देखें, कोई स्टैब्लिशमेंट हो, उसमें पेंट के डब्बे मिल ही जाते हैं। कोई फेस्टिवल होने वाला है तो उस रंग पुताई का कार्यक्रम सबसे पहले होता है। fireworks and paint should not be kept together. That's absolutely elementary. Elementary. We must segregate the risk. Fireworks present one type of risk, the paint present another type of risk. There may be some LPG cylinder which presents another type of risk. There is another say raddi etc., the waste material which is lying around that present another type of risk. So all this has to be segregated and kept in their own containers and domain. Unless we segregate them, they will combine together and any chingari or any spark will light all these and they will have a domino effect which will be catastrophic. ऐसे में जागरूकता होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आतिशबाजी सिर्फ केरल के लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। आतिशबाजी तो पूरे भारत में होती है, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मौके पर होती है। दिवाली के मौके पर तो लगभग पूरे भारत में आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे में जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है या फायर सेफ्टी अवेयरनेस है, उस लेवल पर भारत कहाँ टिकता है? क्योंकि अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से गौतम ने सवाल उठाया था दिल्ली में फायर सेफ्टी को लेकर, दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। प्रगति मैदान में 1 लाख लोग रोज़ाना आ जाते हैं जब ट्रेड फेयर होता है। दिल्ली मेट्रो में इतने लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर दशहरे के मौके पर जब हज़ारों लोग पुतले का दहन किया जाता है तो हज़ारों लोग छोटे से ग्राउंड में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर हम हार्डली कोई सेफ्टी नॉर्म्स देखते हैं। तो आग से बचने की जागरूकता के स्तर पर भारतवासी लगता है कि अभी काफ़ी पीछे है। Yes, we have been lacking as far as awareness is concerned toward fire safety in particular, and our attitude toward life safety is totally not there. It is negligible, I would say. The government, I would suggest and I will pray that government will take cognizance of it and will take educate measures to inculcate, not only inculcate but make people aware. And such incident, as I told, should be an eye opener. We should not depend on them truly. We should start educating right from school, our school children. We have been conducting such type of demonstrations, some classes of our school children in Delhi, so that when they become a citizen, they are at least aware of what fire safety is all about. If I take my case, when I was in school, nobody taught me what is fire safety. Basic, I am sure the same thing would have happened when you went to the schools. So we have no culture of safety per se. But then, as far as Delhi is concerned, let me allow me to say so that we have been taking all due precautions. We have got SOP in place. We have got just tell us what happens in case of the arrangement that is there for the Dussehra in Delhi. We see that there is a distinct difference in what happened in Kerala during the night and what happens every year on the Dussehra in a place like Delhi. See, you talk of the Dussehra, you talk of Diwali, we have been giving advertisement in the newspaper. As far as the awareness is concerned, we are coming through DD News, we are coming utilizing all our channels, we are utilizing the cable TV. Yes. We are sending Nukkad Natak, our people organize those Nukkad Nataks and things like that. We have been doing some display at India Gate. And even at the site.
I think completely different SOPs I'm are coming in to place. that in the site itself. We are segregating Yes. those things. You see, those जो पुतले बने हुए हैं उससे दूरी बनाए रखते हैं, उसका एक कॉर्डन ऑफ हो जाता है, एक सर्कल होगा, दूसरा सर्कल होगा, तीसरा सर्कल होगा, हमारा फायर इंजन वहाँ पे this is what should have been placed here in Kerala as well. Yes, and apart from that, अगर कुछ हादसा हो भी जाता है तो आदमी कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, how to channelize them so that there is no stampede. And not only that, we practice also. You see, we have a Indian Trade Fair प्रगति मैदान में, इतना बड़ा मेला होता है, लाखों लोग दिन में आते हैं, हर मोड से आते हैं, हमारे फायर इंजन्स वहाँ पे लगे हुए हैं, देखते हैं कि कोई भी डिफरेंट स्पॉट्स पे हम खड़े करते हैं, हमारे जो फायरमैन हैं उनको हमारे एक पवेलियन में खड़ा करते हैं. वी हैव बैकपैक सिस्टम ओवर देयर सो दैट दे कैन टेक care of any incident which is taking place, whatever whatsoever small it may be. Then, but prior to that, we inspect all the halls for fire safety, and we give them the report, and we ensure that those measures are adopted there. Now, believe me, by mere allowing them does not mean to hold an incident does not mean that it is fire safe. No, but relatively it is fire safe. And when our people are at the site on standby, they can take immediate step to cover up that incident in an initial stage. And that is how our practice goes about. ये तो शर्मा जी बात हुई उन स्थानों की जहां पर पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से किसी इवेंट का आयोजन किया जाता है, चाहे प्रगति मैदान हो या फिर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, वहां पर भी पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से कोशिश की जाती है. लेकिन ऑर्गेनाइजिंग द फायरवर्क्स, they are there in a good quantity, nothing else is organized it seems. लेकिन दिल्ली में भी हम देखते हैं कि जगह जगह दशहरे के मौके पर जिस तरह से जो इस तरह से आयोजन होते हैं जिसके बारे में शायद प्रशासन को कुछ जानकारी तो होती है क्योंकि पुलिस की व्यवस्था हम वहाँ पर देखते हैं, लेकिन क्या फायर डिपार्टमेंट को भी कुछ पहले से जानकारी दी जाती है कि इस फलां मैदान में उस दिन रावण पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा, इसमें 1000 लोगों के आने की उम्मीद है और इसमें इतना फायरवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कोई ऐसी दिशा प्रक्रिया भी है, क्या ऐसी गाइडलाइंस भी है कि जिसको फॉलो किया जाए? देखिए, टाइम हैज़ चेंज ड्रामेटिकली. जब हम बच्चे होते थे प्रॉब्ली एक रामलीला ग्राउंड में एक रावण जलता था, दशहरे की अगर बात करें तो, और या एक आधी जगह मेरे को दिल्ली में याद है 25 साल पहले 1 या 2 जगह जलता था. आज हर नुक्कड़ पे एक रावण जलता है, हर एक जो गली मोहल्ला है वो अपना रावण खुद बनाता है और वहीं पे कम्युनिटी को इकट्ठा करके वहाँ पे जलाते हैं. तो इसकी अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन, मैं कहता हूँ हज़ारों रावण दिल्ली में दशहरे पे जलते हैं. नो, इन सारे इंसिडेंट को अगर हमारे को कोई बता भी देगा तो हम क्या करेंगे? इज इट पॉसिबल ह्यूमनली? एब्सोल्युटली नो. सो उस केस में क्या किया जाए? ओनली ऑप्शन लेफ्ट आउट इज इफ आइदर वी स्टॉप देम एंड हैव ए कम्युनिटी डिस्प्ले एट वन प्लेस and we reduce the number of such display. दूसरे देशों में रोका गया है क्योंकि कानूनन आपको मंजूरी लेनी पड़ती है अगर आप पटाखे जलाएं. अमेरिका में सरकार के अलावा कोई और पटाखे तो जलाने की अनुमति भी नहीं है किसी को. ऐसे बहुत से देशों के एग्जांपल है जहां पर आपको अगर उनका न्यू ईयर फेस्टिवल होता है, क्रिसमस लिमिटेड टाइम फ्रेम में यू कैन, और वहां पर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा ये फायरवर्क्स को अंजाम दिया जाता है. कोई निजी कोई प्राइवेट किसी इवेंट में फायरवर्क्स आप नहीं कर सकती है. क्या भारत में ये कानून बनाना क्या बनाने का वक्त आ गया है? मेरे को लगता है बिल्कुल आ गया, और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कह रही हैं उसी दिशा में जा रही हैं कि आपको रात को 10 बजे के बाद पटाखे नहीं चलाने हैं. बट आज भी अगर ये गाइडलाइन को काफ़ी पहले आई थी, और अगर हम पिछली दिवाली का भी देखें तो वी हैड लॉट ऑफ फायरवर्क स्टार्ट नॉर्मली आफ्टर 11 o'clock व्हेन द गाइडलाइंस रिस्ट्रिक्शंस स्टार्ट्स. So there is a rule, but we are not following the rule. So who is to blame? Are we looking at the enforcers of law and order to check on this, or should we have a self-regulation on ourselves? I think the best part is to have a self-regulation. We must रोकना चाहेंगे इस वक्त सीधी तस्वीरें जो हमारे पास आ रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी के साथ मौजूद हैं और घटना स्थल पर वो पहुंच चुके हैं और वहां पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं. You can still see fire attending vehicles at the spot and a lot of other material that has been collected, which is being examined by the people who are now, of course, not just looking for people who might still be in that rubble, the survivors, but it's all part of an investigation which will, a judicial investigation that will be in 6 months' time to look at all the facts, because this is something that needs to be looked at in complete detail
and every aspect of it needs to be probed to understand what happened, so that something of this sort, this massive tragedy is not repeated. जी हाँ, क्योंकि ये हादसा छोटा मोटा हादसा नहीं है, आतिशबाजी हुई है। आतिशबाजी कई बार कई मौकों पर भारत के कई शहरों में हर महीने कहीं ना कहीं होती रहती है, लेकिन इस तरह का हादसा अपने आप में आंखें खोल देने वाला है, क्योंकि जिस फायर पावर, जिस आग से हम खेल रहे हैं, वो आग कितनी जिंदगी को तबाह कर सकती है, ये उदाहरण आज सुबह हमें देखने को मिला है। आतिशबाजी की वजह से आग लगना और उसमें 106 लोगों की मौत हो जाना, 300 से ज़्यादा लोगों का घायल हो जाना, इंजर्ड हो जाना, दिल्ली से डॉक्टरों की टीम का जाना, नेवी एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होना, काफ़ी बड़ा हादसा केरल में आज हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी वहां पर मौजूद हैं और घटनास्थल का इस वक्त जायज़ा लिया जा रहा है। पोस्टमार्टम किया जाएगा, ये जानने की कोशिश की जाएगी अब कि कहां पर गलती हुई, कहां चूक हुई और किसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या इसकी प्रमुख वजह रही, और ये भी पता लगाए जाने की कोशिश की जाएगी कि किन किन नियमों का उल्लंघन हुआ। पहले से ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जा चुका है राज्य सरकार के द्वारा, जिसकी मियाद फिलहाल 6 महीने रखी गई है। 6 महीने के अंदर इस आयोग दल को अपने रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपनी है। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। शर्मा जी, क्या आप कुछ बता सकते हैं, ये जो 6 महीने आयोग बना है, जिसको 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी है, क्या रिपोर्ट में तथ्य सामने आ सकते हैं? इस रिपोर्ट के जो तथ्य सामने आएंगे, किस तरह से वो फायदेमंद हो सकते हैं भविष्य में इस तरह के हादसे न हो? देखिए, a term of reference has to be set in for the inquiry, which is to be done in the next 6 months or so, and there will be a lot of material which needs to be examined before they can conclude this exactly has what has happened. They have to reconstruct, as I said, they have to reconstruct the evidences, they have to reconstruct the event, they have to call for witnesses, Yes. Their statements has to be taken, the statement has to be corroborated, the management has to be taken into confidence and brought their statements needs to be recorded, and all these needs to be corroborated before they can come to a conclusion that look, this is what exactly has happened, and then the findings has to be there, then the recommendations has to be there in there, which will state that how we can best prevent incident of such type, and that is what make the inquiry report complete. And I'm sure whosoever has been appointed, they will do justice to it, and we will not see such type of incident or accident happening in future. If at all some law needs to be tweaked or some law needs to be changed, it has to be changed, or some regulations needs to be added, we must add those to those regulations. All these things has to be looked in, gone into by the inquiry committee, whosoever has been appointed, and come to a fair conclusion and give a roadmap and guide to what we should do in future in order to avoid such incidents. जी, ये तस्वीरें देखिए शर्मा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां पर खड़े हैं, उसके पीछे जो हम ढांचा देख रहे हैं, ये स्थायी है अस्थायी है, इसके बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और जिस मैदान में इस वक्त तमाम लोग खड़े हैं, वो मैदान जो टेलीविज़न के ज़रिए हम देख पा रहे हैं, बहुत बड़ा भी नहीं है, और जो रिपोर्ट्स आई हैं, बताया जा रहा है कि 10,000 के आसपास इस मैदान या आसपास के इलाके में मौजूद थे। अब ये समझना अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाला है, इस मैदान में इतने ज़्यादा लोग, और बीच में आतिशबाजी का भी काफ़ी ऐसा कार्यक्रम जो तो 2 या 3 घंटे तक पहले चला और उसके बाद और भी चलना था, तो कितना कंजस्टेड होगा एरिया, ये अंदाज़ा लगाया जाना बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल भी जो लोग 10,000 आदमियों की बात कर रहे हैं और जो मटेरियल स्टोर किया हुआ है, उसमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं रहा होगा, क्योंकि जो तस्वीरों में दिख रहा है, रियली डिस्टेंस का कोई भी परवाह नहीं करी गई होगी, और उसी की वजह से ये जो मरने वालों की संख्या है, जो पीपल इफेक्टेड है, आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न, बिकॉज दे नॉट बीन एबल टू कीप ए सेफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टोरेज and a place where fireworks is taking place and the people who are watching them. Though all these things are in large number, the fireworks was happening in a large quantity, large number, and multiple fireworks were being were fired. The storage was huge. We have seen for 3 odd hours the continuous fireworks was there, and it was still to go on. The dimension of the damage shows that there was enough quantity, huge quantity, allow me to say so, which was still to be fired,
and which accidentally started firing due to some carelessness, and then huge number of people, we are talking of 10,000, 12,000 people who were there. So all these three were there, and one thing went wrong, and the effect we can see what has happened. And clearly at mass events like these, where fireworks are being displayed, another source of fire is not the only source that could trigger something like this off. There can be issues with the electricity as well, or even people say smoking in the venue. Yes, both of them can have a devastating effect. Electricity short circuit can take place. That is one. That is why I said where the stock was lying, one has to see whether they have the electricity provision there or not. Normally, they should not have. If such a massive storage is being done, they should, the premises should not have electrical wiring in that. It better not to have. These are the issues which need to be looked into now. That what exactly was, and reconstruct the events, that what exactly has happened, what went wrong, and that is what we can expect from the inquiry report which we are looking at. क्या इस तरह का कोई नियम कानून है या दिशा निर्देश है कि एक वक्त पर एक जगह पर इससे ज़्यादा पटाखे एकत्रित ना किया जाए? हालांकि जहां फैक्ट्री होती है वहां तो एक साथ काफ़ी मात्रा में पटाखे बनाए जाते हैं, स्टोर भी किए जाते हैं, लेकिन जहां पर आयोजन होना है, जो इवेंट स्थल है, क्या वहां पर इस तरह के नियम कानून है या दिशा निर्देश है कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप एक जगह स्टोर नहीं कर सकते? देखिए, जो फायरवर्क्स की क्वांटिटी है अबाउट 1500 kg के लाइसेंस जो हम दिवाली के टाइम पे देते हैं दिल्ली में, ये रफली 1500 kg, 1200 से 1500 kg. These are for the wholesale sellers. Yes, to the sellers. एक जगह पे इतने रखने की अनुमति दी जाती है लाइसेंसेस को. नाउ ये प्राय आपने भी पेपरों में पढ़ा होगा कि जब रेड होती है एंटी करप्शन के या पुलिस की जो विजिलेंस ब्रांच रेड करता है तो काफ़ी क्वांटिटी पाई जाती है और एंड अबाउट दिस. सो समय दिवाली का होता है, दशहरा का होता है, ऐसे फेस्टिवल का होता है. पीपल वांट टू मेक ए क्विक मनी एंड दे स्टोर मटेरियल ह्यूज क्वांटिटीज सो दैट, एंड क्योंकि बायर्स आर देयर, पीपल आर कमिंग टू बाय and they want to make a easy money out of it, and at times lead to accident like this. Now in this, अगर ये स्टोरेज को सेग्रीगेट कर देते, पक्के मकान, पक्की इमारत में रखते, और से 1 टन अगर है उसको हम 25,000 kg के 4 अगर वो बना देते, तो सिर्फ एक बारी में जो इफेक्ट होता है वो 25,000 ही होता. दिस इज सिंपल. और उसको मेटल कंटेनर से, एक बड़ा ट्रंक है, बक्सा है, उसमें मेटल कंटेनर में रखते, जो चीज़ चाहिए उसको निकाल के ले जाए और उसको पहले फायरवर्क्स को इस्तेमाल कर लें. दैट कुड हैव बीन डन सो दैट ऑल ऑफ देम कैनॉट गो or up in flames altogether. Up in flames altogether. That is the nowadays we also see a lot of fireworks, a lot of pyrotechnical fireworks being imported as well from countries like China. Are there some restrictions on that as well? No, one can always do it, and we can get those crackers here, but then it should meet the requirement which has been laid with respect to pollution norm, with respect to audible sound which they are giving, with respect to the intensity of light which they are emitting. So one can get. But now in other countries, environment friendly fireworks are available, though they are costly bit, and that is why probably they are not finding much use in this part of world. They are a bit costly. They are safe, pyrotechnic, as you said. Okay, safer, relatively safer than what we are using here in this country. But safer environmentally, or is safer in use as well? Both. And if we switch over to those, I think yes, we can always look. But then we are talking of a country like of India's stature. We are talking of a population of India's stature. We are talking of 125 crores of people in this country, and the living conditions changing every 10 kilometers, 20 kilometers as we travel down deep into. क्या यहाँ पर ये माना जाना भी सही है, क्योंकि बारूद तो ज्वलनशील होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जो जिस क्वालिटी के पटाखे आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, जिस क्वालिटी के पटाखे खरीदे जा रहे हैं, वो अपने आप में और ख़तरनाक है. इस ना सिर्फ धुएं के नज़रिए से, बल्कि इस नज़रिए से भी कि वो कुछ ज़्यादा ज्वलनशील है या ज़्यादा असुरक्षित है.
You see, yes, I will agree to that extent. There are inferior material which comes into the market. जब हम बच्चे होते एक शिवाकाशी का ही पटाखा मिला करता था. आज even next door आपके manufacturing किसी ने plant डाला होगा, you never know. It is now being manufactured in almost all state of the country. Even Haryana we are manufacturing those crackers. UP we are manufacturing those crackers. Otherwise it was earlier most of the supply was coming from Shivakasi, the Tamil Nadu, which was famous for this industry. So when we look at this, yes, certain standards may not have been followed, but by and large there are standards available. There are rules and regulations available. These are to be notified. The boxes, there are prescriptions provided, has to be labeled, labeling has to be done, the weight, the light emitting, the decibel value, all those things has to be put into the boxes. But then the volume and the quantity which we are looking at, the geographical area which we are looking at, the mechanism for checking and things like that, licensing processes and all those things, I think a lot needs to be done about it. ये तस्वीरें भी हम लगातार अस्पताल की दिखा रहे हैं शर्मा जी, जिसमें हमने देखा कि जो अस्पताल में जो घायल पहुंचे हैं उनका इलाज किया जा रहा है. हमने देखा तस्वीरों में किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है, किसी को इतनी पट्टी बंधी है, किसी के पूरे हाथ में पट्टियां बंधी हुई है. इस तरह की घटनाओं में इस तरह के घायल लोग भी बहुत होते हैं जिनको इंजरी काफ़ी माइनर है, काफ़ी छोटी होती है. घायलों का आंकड़ा तो बढ़ जाता है, लेकिन इंजरी का जो स्केल है वो अधिकतर कम रहता है. या इसका उल्टा माना जा सकता है कि इस तरह की घटनाओं में खतरनाक जो गंभीर रूप से घायल है वो ज़्यादा माने जाते हैं. देखिए, इसमें जो मेजर जो इंजरीज हुई हैं अपार्ट फ्रॉम बर्न इंजरी वर ड्यू टू द स्टीम्पेड विच हैज़ टेकन प्लेस. पीपल हैव स्टार्टेड रशिंग इन आउट एंड सेव देयर लाइफ, and that can cause different type of injuries. आपका हड्डी टूट गया है, आपका contusions हो गए हैं, आपका खून निकल आया है. These sort of injuries can take place. That is one. And there can be splinter injuries also. Absolutely. Then apart from burn injuries, splinter injuries भी होंगी इसमें ज़रूर, क्योंकि बहुत दूर तक मलबा उड़ के गया होगा, स्प्लिंटर्स गए होंगे और वो लोगों को लगे, हिट करेंगे और वहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई होगी. एंड जो बहुत पास थे जिसके ऊपर फ्लाइंग फायर्स भी गई होंगी, उड़ के भी गई होंगी, वो उनको बर्न इंजरीज़ की कैटेगरी में हम देख सकते हैं. तो ये तीन तरह की इंजरीज इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं जो इसमें इफेक्टेड पर्सनस होंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी, कौन सबसे दूर था उसको कम इंजरी हुई होंगी, जो जब से पास होगा उसको प्रॉब्ली सबसे ज़्यादा इंजरी होगी, जो मिडल में होगा वो ड्यू टू स्टेम्पेड स्क्वीज हो गया होगा, हड्डियाँ टूट गई होंगी, घसीटने से चोट लग गई होंगी. दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स do always happen in such a mass gathering when we look at it, and they can be of critical. When we are talking of criticality, burn injuries can be critical. Similar, जो हड्डी टूट गया है वो भी एक क्रिटिकल हो सकता है. It is just possible. और जिस तरह से दिवाली के मौके पर इस तरह की जागरूकता का संदेश दिया जाता है कि जब आप पटाखे जलाएं तो थोड़े शरीर को ढके हुए कपड़े पहने और लूज़ कपड़े ना पहने, टाइट कपड़े पहने, उनका भी अपना एक इम्पैक्ट पड़ता है. और ये हम केरल की बात कर रहे हैं जहाँ पर सर्दी का मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है. तो अगर शरीर ढका हुआ है तो माना जा सकता है कि थोड़ा सी इंजरी कम हो, लेकिन अगर कपड़े लूज़ है तो आग जल्दी पकड़ने का भी अंदेशा इसमें रहता है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ये सब चीज़ें प्रिकॉशन उस चीज़ के लिए हम जब इंडिविजुअल फायरिंग कर रहे हैं क्रैकर्स की, नॉट इन ए मास. हम घर पे जलाते हैं, कितने होंगे, 1 किलो 2 किलो 5 किलो क्रैकर होंगे, उसको भी हम 3 जगह डिवाइड करके रखेंगे और एक रॉकेट ले जाके बच्चा बीच ग्राउंड में चलाएगा, रॉकेट को, एक सिंगल रॉकेट को आग लगाएगा. और वही रॉकेट कहीं उड़ के किसी एक मास जहाँ पे ज़्यादा वो रखा हुआ है उस पर जाके गिर जाए और फिर वो दनादन पटाखे शुरू हो जाए, तो दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, सूती कपड़े पहने देर से आग पकड़ेगा बनिस्बत पॉलिएस्टर के. टाइट फिटिंग के पहने तो आपका क्लॉथ जो है वो लटकेगा नहीं और कोई भी मोमबत्ती से टकराएगा नहीं, कोई भी फायर वर्क्स उस पर आके गिरेगा भी तो वन कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट. दैट इज़ वाई वी से कि भाई इसको, और अपने साथ हम हमेशा कहते हैं आए हैं कि एक बकेट पानी का रखिए, जो एक बकेट रेत का रखिए, ताकि कुछ भी हो जाए, अगर बर्न इंजरी भी हो जाए तो भी आप पानी में हाथ डाल सकते हैं, पानी में उस पार्ट को, इफेक्टेड पार्ट को डाल सकते हैं. अगर खुदा न खास्ता आग भी लग जाए तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं आग बुझाने के लिए. प्राय देखा गया कि वी हैव सीन दैट बच्चों को बड़ा शौक होता है और हम बच्चों को अलाउ कर देते हैं फायर क्रैकर चलाने के लिए. इट शुड नॉट बी डन. इट शुड बी, दे शुड ऑलवेज बी इन सुपरविजन ऑफ एडल्ट.
क्रैकर ऐसे मतलब हम चलाएं कि And in any case, in events like these, the one that took place in Kerala, there should be trained people who should be involved in these pyrotechnics, and we're not sure if trained personnel were involved here. Yes, when we are talking of competition, what we heard is the competition take place. Now when we are talking of that competition, it means we must have certain techniques to fire those crackers. And there should be professionals doing it. Yes, there should be professionals who are firing it successively and within a given time frame. And then I really do not know what type of competition, whether it is the intensity competition, whether it is the number of cracker being fired in a certain period of time, or whether which goes higher or something like that. But then if we are having a competition, competition can always be between two professionals. That is what basically we look at. And if that is there, then they should have been a professional people who are firing. And if they were firing, then it is a glaring mistake. Then they are keeping their stock right at the place where they are firing. या कुछ हादसे ऐसे होते हैं जिनको रोका जाना बहुत ज़रूरी है, मुमकिन है, लेकिन कुछ हादसे कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको रोका जाना नामुमकिन है, क्योंकि हम फायर सेफ्टी के बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से फायर सेफ्टी के बारे में जागरूकता है, अवेयरनेस है। यहाँ पर दर्शकों को बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली और आसपास के इलाकों में। अफगानिस्तान का हिंदुकुश क्षेत्र है भूकंप का केंद्र, और भूकंप के झटके पाकिस्तान और भारत और दिल्ली में भी महसूस किए गए हैं भूकंप की वजह से। क्योंकि हम फायर सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो भूकंप भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बाद कई बार हमने देखा है इमारतों में आग लगती है। अगर फायर सेफ्टी के अच्छे नियम कानून का इस्तेमाल किया जाए तो क्या ऐसी स्थिति में क्या कोई बचाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर देखिए, भूकंप लगने से भी गैस पाइपलाइन रप्चर हो सकती है, गैस निकलना शुरू होती है, आग लग सकती है। देयर आर अदर वेज बाय विच फायर कैन टेक प्लेस, एंड इफ वी हैव अ फायर सेफ्टी मेजर्स in accordance with the law of the land, lot of things can be saved. The life can be saved and the property can be saved, apart from saving environment, damage to the environment. So जब भूकंप आता है तब भी ये प्रॉब्लम, कोबे का आप एग्जांपल लीजिए, there was a earthquake, an entire city was on fire. There were multiple fire in the city because gas pipeline crack हो गई, जो जैसा दिल्ली में भी है, गैस पाइपलाइन दिल्ली में भी है, चारों तरफ फैली हुई है। आपके घरों में गैस पाइपलाइन आ रही है, आपके पावर प्लांट्स में गैस पाइपलाइन आ रही है। ये आपको रोकना चाहेंगे शर्मा जी, तस्वीरें एक बार फिर से सीधी मिली हैं हमें केरल से, और प्रधानमंत्री घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं, उसके बाद अपने अगले गंतव्य पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। Yes, this is apparently the district hospital that he was supposed to go to next. We'll just have a little more clarity on which spot is this exactly, but we had got pictures earlier of how preparations in terms of security, basic security arrangements had been put in place at the district hospital in Kollam. Prime Minister Modi was expected to visit there. He's been to the spot already at the Putingal temple where this tragedy took place. क्योंकि वो स्थल जो था अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, तो तस्वीरें देख के ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री घटनास्थल के किसी दूसरे हिस्से में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर दरअसल क्या हुआ था और किस तरह से ये हादसा हुआ, और उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ओमान चांडी लगातार उनके साथ बने हुए हैं और स्थिति के बारे में लगातार उनको जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अब से करीब 1 घंटा पहले पहुँचे, उसके बाद उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल पर उन्होंने उन जगहों को देखा जहां पर ये भीषण हादसा अब से करीब 11:30 घंटे पहले हुआ। It's a massive tragedy, and it just seems that the Prime Minister is trying to understand how this could really happen, because it's just impossible to think that such an event was organized where thousands of people had gathered and fireworks were kept in such a huge quantity in such an unsafe manner that now over 100 people are dead. और जिस तरह से हमने पड़ताल की, अभी A.K. शर्मा जी से हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने भी समझने की कोशिश की कि क्या क्या वहाँ पर कमियां रही होंगी, और जो सामान्य तौर पर जिस तरह के हालात देखे जाते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हमने इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। कई इसमें ऐसे तथ्य हैं जिनको कंफर्म होना बाकी है, जिनके बारे में अभी पूरी तरह से सच्चाई
आनी बाकी है। लेकिन सामान्य तौर पर जिस तरह की स्थितियाँ देखी जाती है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं और आतिशबाजी का नज़ारा देखने को मिलता है, उस सामान्य स्थितियों में किस तरह की लापरवाही का अंजाम दिया जाता है और उनमें से एक किसी लापरवाही को आज अंजाम दिया गया जिसकी वजह से ये भयंकर हादसा हुआ। 100 से ज़्यादा लोगों की जाने गई, 106 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से 300 से ज़्यादा लोग घायल है, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो ये हादसा आंख खोलता है, आतिशबाजी को लेकर चमकदार रोशनी किस तरह से खतरनाक साबित हो सकती है, ये एक बार फिर से बताता है। ये कोल्लम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले। ये हॉस्पिटल है जहां पर ज़्यादातर घायलों को रखा गया है और घायलों का वहां पर इलाज किया जा रहा है। कुछ देर पहले हमने हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर हमने देखा कि कुछ माइनर इंजरीज थी, उनका इलाज किया जा रहा था, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनके बारे में सूचना है कि वो उनको यहाँ से कोल्लम से 60 किलोमीटर दूर तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। सुबह से जो घटनाक्रम हुआ उसके मुताबिक राज्य सरकार ने 2 हेलीकॉप्टर की सेवाओं की मांग की थी, जिसको केंद्र सरकार ने माना और तमाम एजेंसियों से गुजारिश की गई और 2 हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को कोल्लम से तिरुवनंतपुरम पहुंचाया गया। ये Rahul, 2 was the quantity, the numbers that had been asked for by the state government, but till now I believe 6 helicopters have been provided, apart from 2 Dornier aircraft and naval ships. Even the Coast Guard is pitching in. So all that could be done at the central level to ensure that those facilities that may be lacking at that coastal town in Kollam, they are augmented. And we've had a central team of doctors going along with the Prime Minister as well. First flying from Delhi to Tiruvananthapuram, and these are burn specialists that have been sent over there. And right now the Prime Minister is at the spot where this entire tragedy took place, and he's trying to understand what really happened on the ground there, and then he's expected to visit the Kollam District Hospital as well. We've been getting you pictures of that as well. We showed you a little while earlier when Union Ministers JP Nadda, the Health Minister, and Minister for Skill Development Rajiv Pratap Rudy had reached there to just ensure things are in place when the Prime Minister comes by. Right now, these are pictures of the spot of that temple, the Puthingal temple in Kollam district where this tragedy has taken place, and then Prime Minister Modi will be headed to the hospital as well. We have former Delhi Fire Chief with us, Mr. Sharma. Mr. Sharma, just trying to get to the bottom of what has happened over here. It is a tremendous tragedy, but if you look at the way this entire event was handled, there is not one SOP that you see that was observed? I would say that probably the precautions which needs to be taken, whether you have a license or you don't have a license, or not taken. Even as a, if I am firing the crackers, onus is on me to save not only my life but to save life of people for which this is being organized, irrespective of the fact whether I have taken a no objection or permission from the district administration or not. And so the onus would be on the organizers, but you see, the administration as well needs to provide some answers as to why did they allow such an event to take place. That is what the problem appears to be, that I'm sure when this much of gathering is there, we are talking of 10,000, 15,000 people, there must be all the staff of administration present there at right over there, and at a fair level, I would say, of the level of a fair officer there from the police department must be present there, and they should have if there was no permission given, they should have just stopped that event particularly, and not to allow that to happen when in absence of any clear-cut permissions. I do not know why this has not been done, and if this would have been done, it would have, this tragedy would not have been talking about these people, and those people would have been alive by now. So there have been a failure of taking precautions, basic precautions. Yes, and because not the administration has said that we did not permit this to take place. That is what I am saying. We did not that is permission. True. If that is true, but if permission had not been given, why wasn't it prevented? Why it was not prevented? That is exactly is the point. Our responsibility does not end by not giving the permission. Okay, we are not given a permission, then we must also take adequate measures to see that they do not do the
thing which for which the permission was not. और ऐसा नहीं है कि इस तरह का आयोजन वहाँ पर पहली बार किया गया हो, पहले भी कई बार होता रहा है, तो प्रशासन को भी पता था कि दरअसल वहाँ पर क्या होने वाला है और कितनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। और जिस तरह से रिपोर्ट्स है, अलग अलग टीमों के बीच में कंपटीशन पहले भी होता रहा है आतिशबाजी को लेकर कि किसकी आतिशबाजी ज़्यादा चमकदार होती है, तो होड़ वहाँ पर लगी रहती है ज़्यादा से ज़्यादा आतिशबाजी पटाखों को इकट्ठा करने की। ये पहली बार हुआ नहीं है, पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, तो लापरवाही का जो स्केल है वो यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, होड़, जल्दबाजी, आतिशबाजी, कंपटीशन, जब हम इन सब की बात करते हैं इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इन एन अनऑर्गेनाइज्ड वे, विदाउट टेकिंग प्रिकॉशन, is definitely likely to lead to an accident or an incident. And the scale will depend what type of precautions we have avoided. Here we have not taken adequate precautions, and we can see the scale to which it has risen. And the lack of precaution has been not just in terms of how much of the firecrackers, the fireworks were stocked, where they were stocked, in the manner they were stocked, and also the gathering itself, the venue where these firecrackers were being lit. I would say it has been a systematic failure. One succeeding the other and one preceding the other, whatever way you take it. It has been systematic failure of things which ought to have been done but not done the way it should have been done. और जब पटाखों का कंपटीशन होता है तो अलग अलग तरह के पटाखे वहाँ पर रखे जाते हैं, रॉकेट रखे जाते हैं जो आकाश में जाकर फटते हैं और फिर चमकदार रोशनी लोगों को देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा आकर्षक अगर लोगों को रखता है तो यही आतिशबाजी सबसे ज़्यादा लगती है। तो ये जितना चमकदार है, जितना आकर्षक है, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि एक बार छूटने के बाद इसकी दिशा पूरी तरह से अनियंत्रित है, किसी भी दिशा में ये जा सकता है। There are two explosions, one on the ground and one in the sky. जी, it is just, yes, आपने बिल्कुल ठीक कहा. We have rockets, we have bombs, we have anars, we have multiple launchers, we have all sort of fireworks nowadays available, which fire successively. You must have seen the firework is going from ground and firing at top, and there are successive 50 to 60 number of shots, which what they call it a multiple shots, which goes and fire into the atmosphere, and you have wonderful colorful lights they create up there, and we enjoy those. But then it has to be done in a particular manner. Due precaution needs to be taken if we have to enjoy them, otherwise it create problems. लापरवाही तो होती है, कई बार हमने देखा है कि कुछ युवक होते हैं उसको अपनी दिलेरी मानने लगते हैं लापरवाही को। अगर अनार जलाना है दिवाली के मौके पर, हम देखते हैं जिसको बड़ी बड़ी तस्वीरों में बड़ा बड़ा क्रॉस लगा के कहा जाता है कि ऐसा ना करे, कि हाथ में अनार रखकर उसको जलाया जा रहा है, रॉकेट को हाथ में पकड़कर ऊपर आकाश में छोड़ा जा रहा है, बड़ी बड़ी तस्वीरों में उस पर क्रॉस लगा के मना करते हैं कि ऐसा ना करें। लेकिन ऐसा करने वाले युवक दूसरे युवकों को कहते हैं कि हम दिलेर है। ऐसा करना जिसको हम लापरवाही कह सकते हैं उसको वो दिलेरी मान जाते हैं। तो माइंडसेट भी बहुत अलग होता है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एटीट्यूड, मैं ये कहूँगा इन सब कंट्रीब्यूट करता है इस दिलेरी के लिए पे। कई बार हम कहते हैं कि हम एडवोकेट करते हैं कि पटाखे को हाथ में रख के ना चलाया जाए, और आपने देखा होगा प्राय कि लोग बाग पटाखे को हाथ में लेके मोमबत्ती से जलाते हैं, देन ट्राई टू थ्रो इट इनटू द एयर। नाउ पटाखा उसमें भी मोमबत्ती से जब आप जला रहे हैं उसी टाइम भी फट सकता है। कई आदमी अपना रॉकेट को हाथ में पकड़ के फायर करते हैं, देन स्टार्ट मूविंग, देन लीव इट, बट देन यू हैव टू हैव सिंक्रोनाइज दीज इवेंट्स विच यू आर डूइंग, एंड इफ यू आर नॉट सिंक्रोनाइजिंग देम वेल, और जिसको आप दिलेरी कह रहे हैं वो एक हादसे में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो हादसे हैं लापरवाही की वजह से तो सामने आते हैं, और साथ ही साथ वो बताते हैं कि किस तरह से छोटी सी लापरवाही बड़े हादसों को अंजाम देती है, निमंत्रण देती है। ये हादसा जो आज सुबह हमने देखा केरल के कोल्लम में, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे, भारी मात्रा में आतिशबाजी का सामग्री वहाँ पर मौजूद थी। 2 या 3 घंटे से आतिशबाजी लगातार चल रही थी, जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अंततः जिस हादसे को निमंत्रण दिया जा रहा था वो हादसा आज सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच आया, और वो 106 लोग, जो हमारे रिपोर्टर ने बताया है, 106 लोगों की जान छीन कर चला गया। 300 के आसपास लोग गंभीर रूप से 300 से आसपास लोग घायल हैं, जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर है, कई लोगों को माइनर इंजरी की बातें सामने आई हैं। तस्वीरें में हमने देखा कि छोटी जो इंजरी है उसकी पट्टी करवाने के लिए लोग अस्पतालों में पहुँचे हैं। खुद प्रधानमंत्री इस वक्त कोल्लम में मौजूद है, घटनास्थल का वो दौरा कर रहे हैं, और उससे कुछ देर बाद वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो घायलों से मुलाकात करेंगे। Yes, and he's trying to basically understand what has caused this tragedy,
what kind of SOPs should have been maintained and were not followed, and now even the state government has announced a judicial inquiry by a former High Court judge that has been given 6 months' time. We are still to learn what is the ambit of this judicial inquiry, but clearly it will be looking into all these aspects of not just who are the people who are behind this sort of a mishap, but all the processes that need to have been followed, that need to have been in place, but were not. And perhaps we can then look at some guidelines also emerging in terms of future events, if such events are to be allowed in the country, because this sort of a mass arrangement of fireworks display or a competition needs to be regulated to the T, and that doesn't seem to have been done in this particular case.